representatives of research and development, institutions, faculty members, entrepreneurs, farmers, members of self-help groups, dear students, ladies and gentlemen. Julay Salam and a warm good morning to you all. It is both a pleasure and a privilege to welcome you to this significant stakeholder consultation program on science, technology and innovation, need identification for sustainable development of Kargil. I would like to extend a special welcome to Dr. Geeta Wani Rayasam, Director of CSIR National Institute of Science, Communication and Policy Research, Professor Vivek Kumar, National Co-Coordinator of Unnat Bharat Abhiyan and Head of the Center for Rural Development and Technology at IIT Delhi, Professor Meenakshi Rajiv, Dean of Outreach and Skill Development at IIT Jammu, Professor Ranjana Agarwal, Scientist and former Director of CSIR NISPER, and Dr. Yogesh Suman, Head of the Agriculture and Sustainable Rural Development Division and Scientist at CSIR NISPER. The vision and leadership have been instrumental in bringing this initiative to Kargil. I also warmly welcome our distinguished technical experts and resource persons, Dr. Praveen Raj from CSIR NIST, Dr. Ashutosh Inamdar from CSIR CF TRI, Dr. Ashok Yadav from ICAR Almora, Dr. Sivang Dorje from NABARD, Dr. Jigmit Yangchan from the University of Ladakh, Dr. Nasreen Fatima Kacho, Senior Scientist and Head of KVK Kargil, Dr. Samir Kumar Sharma and Professor Jyoti Bhatkal from IIT Jammu, Dr. Shiv Narayan Nishad, Dr. Mukul Bajpai from CSIR NISCPR, and Professor M.N. Shabani, Principal GDC Dras. I also extend a warm welcome to representatives from government departments, research institutions, academia, local administration, entrepreneurs, farmers, self-help groups, community leaders, media representatives, esteemed colleagues, and our dear students. Your presence today reflects our collective commitment to harnessing science, technology, and innovation for the sustainable and inclusive development of Kargil. On behalf of the faculty, staff, and students of Government Degree College Kargil, I express our sincere gratitude to CSIR NISPER for organizing this program in collaboration with Unnat Bharat Abhiyan, IIT Delhi, IIT Jammu, and our institution. We are honored to be part of this significant endeavor that seeks to leverage science, technology, and innovation for the sustainable development of this region. Kargil is a land of immense natural beauty, for rich cultural heritage and resilient communities. However, it also faces unique developmental challenges due to its mountainous terrain, harsh climatic conditions, geographical remoteness, and limited access to appropriate technologies. Nevertheless, our region has tremendous potential in agriculture, horticulture, medicinal and aromatic plants, food processing, renewable energy, ecotourism, and rural entrepreneurship. Unlocking this potential necessitates innovative, locally relevant, and scientifically validated solutions. We are particularly encouraged by the progress achieved through earlier collaborative initiatives, especially the promotion of Asafoetida, cane cultivation, capacity building programs, and livelihood enhancement activities. These initiatives have proven that integrating scientific knowledge with local wisdom and active community participation can yield meaningful and sustainable development. Today's consultation is both timely and significant. It provides a unique platform for scientists, researchers, policymakers, government officials, entrepreneurs, farmers, self-help groups, students, and community representatives to come together to identify the region's emerging needs, share experiences, and collaboratively explore
practical science and technology based solutions. I'm confident that our discussions will generate valuable recommendations, identify priority areas for technology deployment, and pave the way for future collaborative interventions that truly reflect the aspirations of the people of Kargil. As an institution of higher learning, Government Degree College Kargil remains committed to promoting research innovative community engagement, and knowledge dissemination. We firmly believe that educational institutions should serve as catalysts for regional development by connecting academic knowledge with societal needs. We assure you of our continued support in facilitating collaborations that contribute to sustainable livelihoods, environmental conservation, skill development. जी आज का ये बहुत ही अहम एक प्रोग्राम का इनेकाद हुआ है जिसका थीम है साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन नीड आइडेंटिफिकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ करगिल। यानी करगिल के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किस तरह से हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी या इनोवेशन को बिदात को यूज़ करके किस तरह से हम करगिल के लिए एक लॉन्ग टर्म दूर अंदेश एक डेवलपमेंट प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये प्रोग्राम जो है वो CSIR जो बहुत ही फेमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है साइंस एंड कम्युनिकेशन का, पॉलिसी रिसर्च न्यू दिल्ली में, और इनका एक कोलैबोरेशन हुआ है उन्नत भारत जो नेशनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें IIT दिल्ली है, IIT जम्मू है और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करगिल इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो आज का ये फुल डे जो सेशन है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। बड़े एक्सपर्ट साइंटिस्ट भी है यहाँ पर, कॉलेजेस के फैकल्टीज़ है, प्रिंसिपल्स है, यहाँ पर फार्मर्स है। तो इन सब के यहाँ पर मौजूदगी में ये ख्याल किया जा रहा है, इस बात पर तबादला किया जा रहा है या इस बात पर फिक्र किया जा रहा है कि किस तरह से करगिल को और बेहतर तरीके से हम डेवलप करें, ख़ास करके एग्रीकल्चर में। अब इनका एक प्रोग्राम जो है शुरू हुआ है करगिल के अंदर हींग कल्टीवेशन का, जिसके लिए हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन, हमारे मौसमी हालात, हमारे ज़मीनी जो खसूसियात है वो हींग कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अहमियत रखता है और दूसरे जगह पर हिंदुस्तान में इसकी कल्टीवेशन नहीं होती है, बहुत कम होती है। और हम जानते हैं कि हींग जो है वो हमारे रोज़मर्रा के खाने पीने में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, इसकी काफ़ी अहमियत है, वैल्यू है। तो उसके ज़राअत को बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम ये सिलसिला शुरू हुआ है जिसमें डिग्री कॉलेज करगिल कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो सबसे बड़ा अहम मसला हमारे जो ज़राअत का है, ख़ास करके हमारे किसान जो है उसका सबसे बड़ा मसला यही है कि हम ऐसे ज़राअत में मुलव्वस है जो हमारे लिए आमदनी बख्श ना हो। इसीलिए हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है वो खेती बाड़ी से, ज़राअत से दूर होते जा रहे हैं। हालांकि हमारे रीजन में बहुत ही पोटेंशियल है कल्टीवेशन में, जैसे कि आप हींग की बात कर रहे हैं। मैं द्रास में एज अ प्रिंसिपल हूँ तो वहाँ पर हमने काला ज़ीरा देखा है, उसका कल्टीवेशन जो है वो हो सकता है बड़े पैमाने के ऊपर। उसी तरह से हम वहाँ पर वाइल्ड मशरूम शंटलिक देख रहे हैं, उसका क्या पॉसिबिलिटी है कि वो वाइल्ड से हम कंट्रोल कंडीशन में उनका कल्टीवेशन करें। तो और दूसरे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो हमारे आने वाले टाइम में फार्मर्स को अगर उसके बारे में ट्रेनिंग दिया जाए, अवेयरनेस दिया जाए, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनके लिए बहुत ही आमदनी बख्श ज़रिया हो और आने वाला जो जनरेशन है जो मुलाजिमत के ख्वाबों में बसे हुए हैं और वो समझते हैं कि ज़िंदगी को गुजारने के लिए, रोज़ी रोटी कमाने के लिए सिर्फ हमारे पास एक ही ज़रिया है, वो है मुलाजिमत है। तो उनके लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है कि इस तरह के प्रोग्राम्स को अटेंड करें और इस तरह के नए नए जो रिक्वायरमेंट्स है कल्टीवेशन में, ज़राअत में, और टेक्नोलॉजीज़ को, इनोवेशन को समझे और इससे न ख़ुद का फलाह बहबूदी हो बल्कि आने वाले नस्लों का और कौम की फलाह बहबूदी हो और हमारी करगिल की जो है इंडिजिनस इकोनॉमी जो है वो भी ग्रो हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम से बहुत सारे नए आइडियाज़ आएंगे और हम किसी न किसी तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर में, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है
वो अपना ताउन पेश करेंगे। अपने रीजन को बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना चाहता है तो इस तरह के प्रोग्राम्स को हमें अटेंड करना चाहिए, समझना चाहिए, इनसे सीखना चाहिए और इसको ग्राउंड के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना चाहिए। बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, एजेंसीज हैं, साथ साथ में गवर्नमेंट भी इसमें बहुत अच्छा सपोर्ट या रोल प्ले कर सकता है। जैसे मैं देख रहा था कि ख़ास करके हमारे पेसिकल्चर में, फिशरीज़ में काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है। हम देख रहे हैं रेम्बो ट्राउट जो है इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करगिल में बढ़ रहा है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इन चीज़ों से एक प्रोडक्ट इनोवेट करें। हमने ऑलरेडी हमारे फूड प्रोसेसिंग यूनिट में रेम्बो ट्राउट का जो है वो पिकल बनाना शुरू किया है, जो काफ़ी डिमांड में है। अभी हम ऑन डिमांड ही बनाते हैं। तो इस तरह से नए नए प्रोडक्ट्स लाइन जो है वो हमें इनोवेट करने की ज़रूरत है। एब्रिकॉट जैसे अभी बता रहे थे एक साइंटिस्ट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे यहाँ पर एक प्रोडक्ट है, क्रॉप है, लेकिन इसको और ज़्यादा इनोवेट करना, इसमें और ज़्यादा वैल्यू एडिशन करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में हमें तहकीक करना चाहिए। और ऐसे प्रोग्राम्स जो है वो रेगुलरली करगिल में हो जहाँ पर फार्मर्स पार्टिसिपेट करें। मैं देख रहा था कि स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन यहाँ पर कम था। अगर स्टूडेंट्स भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको भी एक आइडिया डेवलप हो सकता है आने वाले टाइम में। हम उसको, वो लोग एंटरप्रेन्योरशिप जो है, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप बोले, हॉर्टिकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ वो तवज्जो कर सकते थे। देखिए, फार्मर जो हमारे यहाँ पर अब हम जो देख रहे हैं, ये हमारा प्राइमरी एक्टिविटी नहीं रहा है। पहले तो हमारा ख़ास करके कैटल रियरिंग जो होता था, माल मवेशी का जो काम होता था हमारा, और साथ साथ में हमारा जो ज़राअत का काम होता था, वो बहुत ही हमारा प्राइमरी एक रिक्वायरमेंट था लाइफ को सस्टेन करने के लिए। और पुराने ज़माने में लोग इसी के ज़रिए अपने लाइफ को सस्टेन करते थे। लेकिन अब ये हमारा सेकेंडरी भी नहीं, अब हमारा ये एक टर्शरी एक्टिविटी बन गया है। हम अपने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में, फार्मिंग में भी, हमारे कैटल रियरिंग में क्यों हमारा लाइफ स्टॉक कम हो रहा है? क्योंकि हमने आउटसोर्स कर दिया है। एग्रीकल्चर क्यों हमारा डिप्लीट हो रहा है? क्योंकि हमने ये सारे एक्टिविटीज़ को अब आउटसोर्स कर दिया है। तो ज़रूरत यह है कि हम वापस से इस प्राइमरी इंडस्ट्री की तरफ जाए और कोशिश ये करें कि इसमें और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाए और ज़्यादा इसमें इनोवेशन बढ़ाए, ताकि ये लाइवलीहुड का ज़रिया बने हमारे लिए। आज नौबत ये आ गया है कि हमारे फार्मिंग का बेनिफिट से ज़्यादा उसका कॉस्टिंग होते जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास दूसरे अलाइड इनकम्स है, दूसरे सेकेंडरी इनकम्स है। तो उस इनकम को वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं, बस एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। उससे कोई ख़ास आउटकम बनता नहीं है। तो लोगों का इंटरेस्ट जो है वो एग्रीकल्चर की तरफ कम हो रहा है। तो अब गवर्नमेंट को, पब्लिक को, कुछ हमारे बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं एग्रीकल्चर में, जिनको हम जानते हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में इनोवेशन किया हुआ है और काफ़ी कुछ इसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है। सीबाथॉर्न जो है वो एक मेजर इंडस्ट्री बन रहा है हमारे लद्दाख में। फार्मर्स इससे काफ़ी कमा रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारे दूसरे क्रॉप हैं जिसको हम एक इंडस्ट्री का शक्ल दे सकते हैं, उसकी कमर्शियल वैल्यू हम बना सकते हैं, उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। इससे हम अपने जो करगिल का या लद्दाख की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। I'm Praveen Raj, scientist from CSIR NIST Thiruvananthapuram. I'm here to present about the technology interventions which can be done by CSIR NIST Thiruvananthapuram. Especially we know the place like Kargil, it has a lot of challenges from the climate and all. And we have got something called a dryer, dehumidifying dryer, and this dryer is used for drying any kind of crops. And for example, you have your own crops here, apricot and all, which can be dried in a dehumidified atmosphere. The biggest problem you are facing is when humidity is more, then the temperature cannot be controlled so easily. So when dehumidifier dryer is used, your temperature need is very less. You can dry it at a moderate temperature, and also because of that you will have a lesser energy to be utilized. We also have a solar dehumidifier dryer. So solar energy is a lot of solar energy is available in this place. So because this is a high altitude area, so this can be effectively utilized. So this is one of the technology which I am presenting here. And apart from that, we have developed many technologies which are of rural relevance. For example, biodegradable cutleries, from which we can
we can develop cutleries and plates using something which we like throw out some grains or anything of that sort, which can be converted to biodegradable kit, which is edible to cattle also. Another thing is like we can convert this leather, we can make vegan leather. That means leather can be produced using agricultural waste. So that is also another area. So whatever intervention which you require for this region, CSIR NIST Trivandrum can support you, and we always welcome you. Our laboratory, if you want to do further research, use our equipments, please visit our laboratory. We are always open to you, and we are even ready to come up. It's actually a reach out program. We are ready to reach out to you again to support you, to support the region, because the region is in need of technology, because you are the people struggling hard with climatic conditions, with struggles to live here, and you have to cope up with the nature. You need technology, and we are here to give you the technology. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का प्रोग्राम जो है ये इन कोलैबोरेशन विद CSIR, उन्नत भारत अभियान, IIT दिल्ली, IIT जम्मू और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का एक जॉइंट प्रोग्राम है, जिसमें हमने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स लाइक प्रोग्रेसिव फार्मर्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च साइंटिस्ट, स्कॉलर्स, इन सबको यहाँ पे बुलाया है। एंड बेसिकली ये प्रोग्राम जो है इट वाज टू सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ हींग, जो कि आज से 3 साल पहले चला था, और ये एक प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट था जो कि अभी सक्सेस हुआ है। और इसी को सेलिब्रेट करते हुए हम इसको वाइडर स्केल पे भी लाने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमें फार्मर्स और लोकल लोगों की ज़रूरत होगी। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें बहुत इंटरेस्टेड है इन टर्म्स ऑफ फंडिंग एंड अदर स्कीम्स। सो ये प्रोग्राम जो है वो एक काइंड ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ हींग है सर। डेवलपमेंट जो है वो ओवरऑल एक प्रोसेस होता है, जिसमें हमें फार्मर्स, जो जहाँ तक अभी हमारा प्रोग्राम है दैट इज़ विद द फार्मर्स, और फार्मर्स को हम यहाँ पे सैपलिंग्स देते हैं और वो सैपलिंग्स ग्रो करके फिर मार्केट जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है जिसको हमने शुरू किया था 2023 में, और आज 2026 में ये सक्सेस में है। तो अभी हमारा नेक्स्ट फेज़ जो है वो मार्केटिंग का होगा। तो दिस इन अ वे इसको हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पे लिवलीहुड की तरफ जा रहे हैं, और ये एक काइंड ऑफ डेवलपमेंट हम अभी करने की कोशिश कर रहे हैं। फार्मर्स जो मेहनत करते हैं उनमें आप टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लेके अगर हम चलें तो उनका मेहनत जो है वो ज़्यादा रंग लाएगा। तो अभी हमारे पास हींग के साथ साथ एप्रिकॉट पैकेजिंग का भी अभी यहाँ पे जो साइंटिस्ट आए उन पे वो विज़िट करेंगे फील्ड में, तो उसमें शायद उनको और मदद मिले और फार्मर्स जो है वो उससे काफ़ी उसमें बेनिफिट उनको होगा। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष इनामदार, मैं चीफ साइंटिस्ट CSIR CF मैसूर से आया हूँ। ये जो इवेंट आज ऑर्गेनाइज़ किया है निस्पर, उन्नत भारती और डिग्री कॉलेज लद्दाख से, एक हमारा प्रयास है कि जो भी टेक्नोलॉजी, जैसे कि अभी मैं जो CFTRA से आया हूँ, जो भी टेक्नोलॉजी पे हमने काम किया है, CFTRA लगभग 75 साल से फूड टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। तो जो भी टेक्नोलॉजीज है, हमने लगभग अभी तक 450 टेक्नोलॉजीज डेवलप किया है। और हमारा ये प्रयास है ये इवेंट के थ्रू कि जो भी कारगिल लद्दाख रीजन में जो भी कमोडिटीज़ आप कल्टीवेट करते हो, वो फार्मर्स को हम लोग एम्पावर करना चाहते हैं कि वो नॉट जस्ट कमोडिटी, उसको प्रोसेस करे। वो जो भी लोकल आपके प्रोडक्ट्स है उसको हम लोग कमर्शियलाइज करके ऐसे पैकेजिंग दे कि वो उसका शेल्फ लाइफ बढ़े, या फिर आप एक्सपोर्ट कर सके हो, ताकि फार्मर्स या जो भी यहाँ के MSME इंडस्ट्रीज है उनको फ़ायदा हुए। ये हमारा प्रयास रहता है हमेशा। तो ये एक अच्छा मौका है फार्मर्स को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को एक जगह पे आए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। और ये हम ये माध्यम से हम आपको भी अपील करते हैं कि आपको जो भी आगे भी कुछ जानकारी चाहिए या फिर कुछ कोलैबोरेशन चाहिए, आप हमसे कांटेक्ट करें। एक हमारा हेतु है कि फार्मर्स को एम्पावर करना, लोकल इंडस्ट्री को एम्पावर करना, तो हमें इस साथ में करने का हमारा प्रयास है। गुड मॉर्निंग। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो है
2024 से इसमें जुड़ी हुई है। हम ये कोलैबोरेशन कर रहे हैं विद CSIR निस्पर उन्नत भारत अभियान, IIT दिल्ली और IIT जम्मू के साथ, जिसमें हम यहाँ के जो लोकल फार्मर्स हैं उनको हींग उगाने में मदद कर रहे हैं। ये उन्नत भारत का एक प्रोग्राम है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक फ्लैगशिप प्रोग्राम जो हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो उसी को लेके आज हमारे यहाँ पे एक कंसल्टेशन प्रोग्राम हो रहा है जहाँ पे सारे स्टेक होल्डर्स प्रेजेंट हैं, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, फार्मर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो सबको हम एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके उनको ये एक फैसिलिटेटर की तरह हम यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, ताकि फार्मर्स, हमारे जो फार्मर्स हैं वो लेटेस्ट साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जाने, उनको अपना सके और उनसे अपना जो एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड है वो कमा सके। तो इसका एक हिस्सा बनने में हमें बहुत खुशी हो रही है और हम ये उम्मीद रखते हैं कि आगे भी डिग्री कॉलेज कारगिल जो है ऐसे और काम करेंगी और भी ज़्यादा मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन देगी टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द कम्युनिटी एट लार्ज। थैंक यू। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।